पूरे हमारे बीएचयू में सारे गर्ल्स हॉस्टल्स को 10 बजे कर्फ्यू निभाना पड़ता है। एक चीज़ है कि मैं भी हॉस्टल में रहती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल में। तो गर्ल्स हॉस्टल में जैसे हम अडल्ट हो गए फिर भी 10 बजे का कर्फ्यू होता है, और पीएचडी लड़कियां होते हुए भी उनको 10 बजे अंदर बंद कर दिया जाता है। तो ये कैसे ठीक है? जैसे पूरे हमारे बीएचयू में सारे गर्ल्स हॉस्टल्स को 10 बजे कर्फ्यू निभाना पड़ता है। तो एक ये सुरक्षा जो एक तमाम तरीके की जो महिला सुरक्षा को लेकर तमाम है, तो ये यूनिवर्सिटी और वहाँ के हॉस्टल्स का नियम है। ऐसा है कि बाहर जैसे एक लड़की लाइब्रेरी में 10 बजे के बाद पढ़ना चाह रही है, पर वो हॉस्टल में रहती है, तो उसको वापस जाना पड़ेगा हॉस्टल में। तो हॉस्टल में 10 बजे के बाद बाहर आना अलाउड नहीं है। तो बाहर का जो सिक्योरिटी वो बढ़ाओ। आप लड़कियों को अंदर क्यों मतलब लॉक कर रहे हो? जो बाहर का प्रॉक्टर है वो सब कैंपस का सिक्योरिटी बढ़ाए। लड़कियों को अंदर बंद करना ये कौन सा सिक्योरिटी होता है? इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मैं कात्यायनी हूँ भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा से। A few days ago, I was featured in a video in which I spoke against the curfew timings in the girls' hostels of Banaras Hindu University. Countering the comments of that video, a few girls from my hostel have come together to make this video. They tell us that it is about our security, that we have a curfew so that we can be kept safe. But this is not true. Whether we are inside or outside, whether it's the day or the night, we continue to be assaulted. In fact, statistics even tells us that most rapes happen inside the house and is done by the closest relatives of the victims. Second, a few years ago, our curfew timing was at 8 o'clock, which was extended to 10 after many protests. We can see that this does not mean that the girls suddenly started feeling safe after 8 o'clock. Many hostels within our campus, the IIT and the IMS hostels, do not have a curfew at all. Does this mean the girls from these hostels are not safe? This is countering many comments, which included women, saying that they feel safe because of the curfew. Third is that if it's really about our security, then why do the girls' hostels of MMV, which is a closed premise, which is an all-girls premise, have a curfew? BHU, being a public university whose complete access should be permissible to all students, is only conditionally accessible to the girl students. Are the girl students of this campus not equally students of this university as the boys? Why is there such a vast difference between the way the administration treats us as compared to the boys? If you really care about our security, then increase the number of guards patrolling not only within the campus but outside. Not only within the hostel but also outside. When 9.6 crores is being spent on is allocated to be spent on security, then why are the professors and the students of this university not safe at night? Most proctors do moral policing against couples which are sitting in the campus. Is this what the proctor is made for? And yes, if I or any girl in this hostel or outside or within this campus is assaulted, then it is the responsibility of the VC and his chief proctor. This is countering many comments which said that if I will go out, I will be assaulted and I will blame the VC. Of course I will blame the VC. Who else is to blame for the security of the students in this university? Next, some friends from my hostel would like to keep their point of view. प्रश्न उठता है कि महिला अभ्यर्थियों को रात 10 बजे के बाद सेंट्रल लाइब्रेरी जाकर पढ़ने की आवश्यकता आखिर क्यों है? पढ़ाई तो कहीं से भी की जा सकती है। पढ़ाई के लिए कोई स्थान, काल, रीति या समय निर्धारित नहीं है। जी ठीक है, मान लिया।
और इसीलिए रात 10 बजे के बाद सेंट्रल लाइब्रेरी के दरवाजों पर ताला लगा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। और इसी के साथ ही पुरुषों के छात्रावास पर भी रात 10 बजे के बाद ताला लटका देना चाहिए, ताकि वो भी सेफ्टी के साथ अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर सके। Why should girls have all the fun? Boys भी तो सेफ्टी डिजर्व करते हैं ना। पुस्तकालय विद्या का मंदिर है और सभी विद्यार्थी इसके साधक हैं। जब विद्या किसी में भेदभाव नहीं करती तो हम महिलाओं पर ये सिलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं? महिलाओं को भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों का है। उसमें समय का विभाजन नहीं होना चाहिए। सेंट्रल लाइब्रेरी के दरवाजे विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। ये कितना विडंबनीय है कि रात में पुरुष सड़कों पर फ्री घूम सकते हैं किंतु महिलाएं नहीं। महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं है कि वो डिसाइड कर सके उन्हें कब पढ़ना है और कहाँ पढ़ना है। सर्व विद्या की राजधानी में महिलाओं के साथ हो रहा ये सिलेक्टिव ट्रीटमेंट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको हम अपने स्तर पर नियंत्रण में ला सकते हैं। विश्वविद्यालय के स्तर पर हम प्रशासनिक बदलाव कर सकते हैं। बसों का रात 10 बजे के बाद परिचालन होना, महिलाओं के प्रति सेफ्टी बढ़ाना और प्रॉक्टर गार्ड्स की ड्यूटी और बढ़ाना छात्रों में एवं समाज में भी संवेदना ला सकते हैं। सालों से अटका हुआ जीएस कैश है, उसे हम लागू कर सकते हैं। उसके साथ ही बॉयज हॉस्टल में जेंडर सेंसिटाइजेशन सेशंस लागू कर सकते हैं। हम 1-to-1 सेशंस ले सकते हैं, इंटरैक्शंस कर सकते हैं। हम विश्वविद्यालय में, इंस्टीट्यूट्स और फैकल्टीज में जेंडर सेंसिटाइजेशन पे सेमिनार दे सकते हैं। महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में जागरूक किया जा सकता है। महिलाएं जब सड़कों पर निकलेंगी ही नहीं तो वो समाज में अपनी भागीदारी कैसे निभा पाएंगी, वह अपनी इक्वालिटी पर अपना हक कैसे जमा पाएंगी। छात्राओं को हमें ह्यूमनाइज करना है, सेक्सुअलाइज नहीं। ये विश्वविद्यालय जितना आपका है उतना मेरा भी है, सड़कें जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, ये कैंपस हम सबका है, लाइब्रेरी हम सबकी है। ऐसी सोच और ऐसा प्रतिबंध मूर्खतापूर्ण है। कृपया इसे लागू ना करें और इसे आगे ना बढ़ाएं। यदि एडमिनिस्ट्रेशन सचमुच महिलाओं की सेफ्टी चाहती है तो उसे उन गानों पर भी रोक लगानी चाहिए जो सीधे सीधे महिलाओं का वस्तुकरण दिखाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि कोई भी त्योहार हो, होली हो या कॉन्वोकेशन हो, डीजे पर खुलेआम ऐसे गाने चलाए जाते हैं कि लॉलीपॉप लागे लो, शीला की जवानी। क्या इन सब चीजों पर रोक लगाना जरूरी नहीं है? क्या ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए जरूरी नहीं है? और हम देख सकते हैं कि कैसे लड़कों के द्वारा ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि एलबीएस का नारा है, एमएमबी हमारा है, आर्ट्स फैकल्टी का नारा है, एमएमबी हमारा है। एमएमबी हमारा ही क्या दर्शाता है? ये महिलाओं को देखने की एक दृष्टि दर्शाता है कि जैसे महिलाएं कोई वस्तु है, कि मतलब सिर्फ वस्तु है, उनका कुछ स्वतंत्रता या उनकी कुछ इच्छा कुछ है ही नहीं, जो चाहे उन पर अपना हक जताए। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इन मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ लड़कियों को 10 बजे के कर्फ्यू के अनुसार अंदर रहने की हिदायत देनी चाहिए। अपने कैंपस में रात में घूमना क्यों गलत है? जब अभद्र टिप्पणी करने वाले पुरुष स्वतंत्र घूम सकते हैं तो महिलाओं को टोका जाना गलत है। रात के 10 बजे के बाद बाहर जाना क्यों गलत है? यदि गलत है तब वो पुरुष विद्यार्थियों पर भी लागू होना चाहिए। 10 बजे के बाद सारे गेट पर ताला लगा देना चाहिए। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो। प्रॉक्टर ऑफिस की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जब 10 बजे तक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं तो उसके बाद भी कर सकते हैं। यह विश्वविद्यालय जितना आपका है उतना ही मेरा भी, तो मुझ पर ये प्रतिबंध क्यों? कहाँ जाना है, क्या करना है, कब करना है, क्या पहनना है, ये आप बताने वाले कौन होते हैं? ये मेरा निजी विचार है। ड्रेसिंग सेंस को देखकर जज करना, रात में बाहर जाती है जरूर लड़के से मिलने जाती होगी, ऐसी सोच रख कर मुझे कटघरे में खड़े करना बिल्कुल गलत है। सोच बदले और सभी को बराबरी का हक। The comment section of the video often reflects the mindset of our society. Verbally abusing a girl, talking about her right is also a crime. Character assassination and slut-shaming can never be used as excuse for assault. Unfortunately, the legal system, including the police and courts, continues to reinforce the same regressive mentality. Recent verdicts by the Allahabad High Court in rape and sexual assault cases have displayed misogynistic attitude and violated fundamental rights. Forcing victims to marry their rapist or relaxing laws to protect the accused are not solutions to the violence women face. Public insensitivity toward the harassment women endure only worsens the issue. It's not about a woman's age, hair clothes or the time of day. It's about a deeply rooted patriarchal mindset that must be challenged and dismantled.